Good morning. I am Lalwadi Yadav. Physics today. Application of a Gauss theorem. Today we are studying application of a Gauss theorem. Application of a Gauss theorem. Last day we are studying about Gauss theorem. पीछे दिन हम लोग गॉस थ्योरम के अबाउट स्टडी की। आज उस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ओके, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में जो है कई जगह यूज किया जाता है गॉस थ्योरम, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एक थिन स्फेरिकल सेल जिस पर चार्ज प्रेजेंट हो, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to a uniformly charged thin spherical cell। एक सपोज कर लीजिए ये आपका थिन स्फेरिकल सेल है। ये थिन स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर O है। इस थिन स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस आपकी कैपिटल R है, इस थिन स्फेरिकल सेल पर चार्ज प्लस Q प्रेजेंट है। इसके इनसाइड एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। इसके इनसाइड एक गॉसियन सरफेस ये है डॉटेड लाइन से, और आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस हम इसको सपोज कर लेते हैं ड्रॉ करके। ये जिसकी रेडियस स्मॉल r है,
इस स्पेरिकल शेल के आउटसाइड पर एक इस पॉइंट हम ले लेते हैं P, जिसकी स्मॉल एरिया ये है, और इन साइड पर कोई पॉइंट हम P डैश ले लेते हैं। ठीक, वेयर डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड then we can say let as a figure let O be the center, O be the center, and capital R the radius of thin, and capital R the radius of thin spherical isolated spherical cell. Isolated spherical cell carrying a charge plus Q, which is uniformly distribute on the surface. Distributed on its surface. Then determine the electric field at an external point, that is point P. At external यानी इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो इसके लिए जो है कि आप देखिए एरिया वेक्टर हो जाएगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही सेम होगी। ओके, ये जो है कि आपका, और ये दोनों गॉसियन सरफेस हैं। Gaussian surface. Let P be a point distance small r
distance small r is greater than capital R, where capital R is the radius of spherical shell. From the center O. At which electric intensity is required? Let us consider the area element ds. Let us consider area element ds around the point P. P. Direction of dA and ds and E both are same, यानी dA इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. दैट मीन्स इनके बीच के एंगल 0 होगी. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट electric flux area element ds is d phi e is equal to vector e dot vector ds is equal to e ds cos 0 equal to E into ds.
अब पूरे गॉसियन सरफेस से रिलेटेड हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लें। तो द फ्लक्स थ्रू द इंटीरियर गॉसियन सरफेस ए, the flux through the Gaussian surface, total electric flux through the Gaussian surface phi E is equal to integral of over closed surface vector E dot vector ds is equal to integral of over closed surface E into ds is equal to E integral of over closed surface ds. But integral of over closed surface ds equal to 4 pi r square. So phi E equal to E into 4 pi r square. But according to Gauss theorem, phi E is equal to 1 upon epsilon naught into total charge Q. Therefore phi इक्वल टू ये होगा या phi इक्वल टू ये, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वल टू फ्रॉम equation first and equation second we have E is equal to E into 4 pi r square is equal to 1 upon epsilon naught into Q, या E is equal to, अब ये चला आएगा नीचे तो 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square। आउटसाइड पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। If sigma be the uniform charge density, if sigma be the uniform charge density, at the surface of cell, so Q is equal to 4 pi r square
sigma where r is radius of cell. Therefore A is equal to sigma upon epsilon naught, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q के प्लेस पर आप रख दीजिए 4πr² सिग्मा, तो आपका बच जाएगा यहाँ कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। अब इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एट सरफेस, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इन दिस केस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q बाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाए। सरफेस पर हो गया, सरफेस से आउट ऑफ प्लेस पर हो गया। अब इंटरनल पॉइंट P डैश पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। एट एन इंटरनल पॉइंट for point inside the cell, point inside the cell as P dash, as P dash। P डैश पर हम फाइंड करें तो देखते हैं कि इस P डैश से इनक्लोज्ड कोई गॉसियन सरफेस थ्रू P डैश डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज। ठीक, द गॉसियन सरफेस थ्रू P डैश the Gaussian surface through P dash does not enclose any charge। Therefore phi E equal to E into 4πr², 4πr²
जब इनसे इनक्लोज कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, E इक्वल टू ऑल्सो जीरो। ओके, यानी स्फेरिकल सेल के इनसाइड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ओके, तो इनके बीच हम एक ड्रॉप ड्रा कर दें। ये सपोज कर दीजिए आपका ये स्फेरिकल सेल है जिस पर चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट है। सेंटर O जिसकी रेडियस कैपिटल R, रेडियस R, जहाँ पर ये डिस्टेंस आपका कैपिटल R, ठीक। और ये आपको इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके सरफेस पर आपकी एक डिफिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सरफेस पर जो कि आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये ग्राफ मिल जाएगा आपका, क्योंकि सरफेस पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर थी, और सरफेस के इनसाइड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो ये जीरो हो जाएगा। और सरफेस के बाहर आउट ऑफ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है। E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। देखिए ये E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर ये है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, उसके बाद सरफेस के इनसाइड जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तुरंत। सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ओके।